है सीटी स्कैन, कोन बीम सीटी बोलते हैं, उसमें रेडिएशन, एडिशनल रेडिएशन थोड़ी बहुत पेशेंट को जाती है। इसमें वो कोन बीम सीटी स्कैन को हटा के एमआरआई लाया गया है, उसकी इमेज भी बेटर है और उसमें रेडिएशन एक्सपोजर भी नहीं है, तो इसलिए इसमें रेडिएशन एक्सपोजर के हिसाब से भी दिस इज अ बेटर मशीन। Aggressive strategy to tackle this kind of epidemic of cancer which is going to spread. And not all cancers are same, so it requires multiple modalities, it requires different types of therapies, etc. So as an organization, we are very clear that we need to make all sorts of interventions in the entire cancer treatment arena, both in focused geographies and across different communities, not only in one place, so that because nature of the treatment is such that some of the treatments are repetitive, whether it's chemotherapy or radiation therapy, patients have to repeatedly come to the hospitals. So that is why it is very important that they have facilities available which are accessible to them so that they don't face any logistic challenges. So for that reason, we want to develop several centers across the country. Within Delhi NCR, we want to have at least 4 different centers, and we have this center which is sort of state of art and has almost everything. Then in Shalimar Bagh, we are creating another center that also we are going to take to the similar standards over the next 3 to 4 years. We are doing some construction there. We will be enhancing the capacity of the hospital as well at the same time. So these kind of plans are there. But at the same time, we also understand that there is a certain social obligation and responsibility of any corporate, and that we want to focus on cancer prevention program and increasing the awareness about the different types of treatments and facilities which are available to the patient, the options which are available. So we are also going to develop certain screening programs for the community, so that we can have early diagnosis, and that early diagnosis leads to a better outcome. And cancer outcomes have improved so dramatically with the advancements in the treatments. So it's important that we intervene early on in the case, and at the same time, we don't lose our eye on the prevention and early diagnosis. आज प्रेस वार्ता हुई है, उसके बारे में बताइए। और जो आपने एक मशीन बताई है, वो कितनी आधुनिक है, कितनी कारगर है? ये हम आज जिस मशीन का उद्घाटन किए हैं, इसका नाम है MR Linac। तो ये एक रेडिएशन टेक्नोलॉजी है, पर ये एक नई तरह की रेडिएशन टेक्नोलॉजी है। ये कैंसर के मरीजों के लिए जो रेडिएशन दिया जाता है, उसमें उपयोग होता है। ये भारत में दूसरी मशीन है। एक ही मशीन अभी तक थी, वो साउथ इंडिया में थी, और ये दूसरी मशीन है इंडिया में। ये एक तरीके से एक पाथ ब्रेकिंग टेक्नोलॉजी है, मतलब एक नया तरीका है उस रेडिएशन देने का। जो शरीर में अंदर मूवमेंट्स होते रहते हैं, उसके बावजूद इसका असर होता है और बहुत स्पेसिफिक जगह पे उसको रेडिएशन दिया जा सकता है। तो इस कारण से ये एक बहुत ही आधुनिक पद्धति है, और इसका मरीजों को खास तौर पे जो बहुत डिफिकल्ट ट्रीटमेंट्स होते थे पहले, उनके लिए उपयोग होगा। दूसरा इसमें ये एडवांटेज है कि ज़्यादा बार थेरेपी नहीं करना पड़ता। ट्रेडिशनल जो पहले पुराने पद्धति से जो रेडिएशन दिया जाता है, उसमें 6 से 7 हफ्ते तक का कभी कभी रेडिएशन देने की जरूरत पड़ सकती है, पर ये 3 से 5 दिन में हो जाता है। तो ये एक तरीके से बहुत बड़ा एडवांटेज है पेशेंट के लिए, लॉजिस्टिकली और बाकी दूसरे। कारगर कितनी है सर ये? और
3 से 4 दिन बता रहे हैं आप, इसमें पेशेंट है वो बिल्कुल ठीक हो जाता है। हाँ, जो कुछ ट्यूमर्स, जो छोटे ट्यूमर्स होते हैं जो ऐसी जगहों पे हैं शरीर में जिनको नॉर्मल ट्रीटमेंट से ठीक करना मुश्किल है, वो इससे ठीक हो जाते हैं। कॉस्ट की बात करें कि तो अभी ये पद्धति क्योंकि नया पद्धति है और मशीन बहुत इसकी एक्सपेंसिव है, तो इसलिए इस ट्रीटमेंट की कॉस्ट थोड़ी ज्यादा है। जो सामान्य ट्रीटमेंट है उससे 1.5 से 2 गुना ज्यादा है इसकी ट्रीटमेंट कॉस्ट। पर जैसे जैसे ज्यादा मशीनें लगेंगी तो ये डेफिनेटली इसकी कॉस्ट भी कम होती चली जाएगी। कितने हॉस्पिटल्स में अवेलेबल है? अभी भारत में सिर्फ 2 जगह पे अवेलेबल है। ये नॉर्थ इंडिया में ये पहली मशीन है। फोर्टिस हॉस्पिटल जी। और मैं यहाँ पे डायरेक्टर और हेड हूँ डिपार्टमेंट ऑफ रेडिएशन ऑन्कोलॉजी, फोर्टिस मेमोरियल रिसर्च इंस्टीट्यूट गुरुग्राम। सर, आज जो कॉन्फ्रेंस की गई है, जो आधुनिक एक मशीन है, उसके बारे में बता दीजिए। ये जो मशीन है ये दुनिया की सबसे एडवांस मशीन्स में मानी जाती है। इंडिया में ये दूसरी है और नॉर्थ वेस्ट ईस्ट इंडिया में ये पहली है। कहीं भी दिल्ली एनसीआर में ये अभी तक नहीं आई है, तो इसलिए ये बहुत स्पेशल मोमेंट है कि ये नॉर्थ इंडिया की पहली मशीन है। और इस मशीन का सबसे बड़ा एडवांटेज है कि कैसे कैंसर के ट्रीटमेंट की सक्सेस रेट, मतलब कि कैसे कैंसर ज्यादा से ज्यादा लोगों में ठीक हो, उसको हम बोलेंगे सक्सेस रेट। और दूसरा कि इसके कैंसर के नाम से एक तो लोग डरते हैं और उसके ट्रीटमेंट के साइड इफेक्ट से और डरते हैं। तो इससे ट्रीटमेंट के साइड इफेक्ट्स भी कम होंगे और क्योर रेट और कंट्रोल रेट वो बेटर होंगे। तो दोनों तरफ से फायदा है कि ज्यादा लोग ठीक हो पाएंगे और कम लोगों को साइड इफेक्ट होंगे। तो अगर किसी पेशेंट का इलाज हुआ और वो खाना खाने कहीं जा रहा है और उसको ट्यूमर था थ्रोट का और वो खा नहीं पाया, तो उसका क्या फायदा उस लाइफ का। वो चीजें इन सब में क्वालिटी भी बहुत बेटर होगी कि वो सोशल लाइफ और सोशल ईटिंग बोलते हैं, और ये सब बेटर होगा। प्रोस्टेट ट्रीटमेंट हुआ, कईयों को पेशाब में तकलीफ रहती है, वो सब चीजें बहुत कम हो जाएंगी। सर, कैंसर है जो एक ऐसी बीमारी है, किसी को पता लगता है तो आधा तो वो डर से ही मर जाता है। तो इसके लिए जागरूक करने के लिए उसे बचने के कुछ उपाय बताइए। हाँ, ये तो डॉक्टर वीरेंद्र आए थे अभी, यादव साहब, वो 3 चीजें बता गए हैं और वही है 3 चीजें। सबसे बड़ा है स्मोकिंग, दूसरी है पान तंबाकू, तीसरा है शराब। इन तीनों चीजों से हमें 50% जो कैंसर है इन 3 चीजों से होते हैं, 50% कैंसर। और बाकी कैंसर जो है वो थोड़ा बहुत, जैसे ब्रेस्ट कैंसर है, अब ये कहेंगे जी वो तो शराब से नहीं होता। वो क्यों होता है? वो इसलिए हो रहा है कि भाई अब जो है वो हमारा सोशो इकोनॉमिक स्टेटस बदल गया, हमारे यहाँ अवेयरनेस ज़्यादा आ गई, विमेन जो है वो जॉब्स पे जाती हैं और खाने पीने का भी हमारा हालत थोड़ी सी अब खराब हो रही है कि हम नेचुरल चीज़ें खाने के बजाय प्रोसेस फूड खाते हैं। बर्गर खा लिया, सैंडविचेस खा लिए, उससे वेट बढ़ता है। तो ब्रेस्ट कैंसर जो है वो हायर है अगर आपका वेट ज़्यादा है और आपका फैट इंटेक ज़्यादा है। तो हरी भरी सब्जियां जो कि हरियाणा के गांव में होती है वो खाओ, तो उससे हरिष्ट पुष्ट रहोगे। वो हम छोड़ के अपना मैकडोनल्ड और बर्गर किंग की तरफ जा रहे हैं, ये फर्क है। तो इसलिए विमेन में ब्रेस्ट कैंसर ज्यादा है, यूट्राइन कैंसर ज्यादा है, मेन में लंग कैंसर ज्यादा है और प्रोस्टेट कैंसर ज्यादा है। तो रोकथाम तो वही है, अल्कोहल, स्मोकिंग और पान तंबाकू, उसको कम करना पड़ेगा। है तो मुश्किल, तो लोग कहते हैं जी सभी को छोड़ दो तो फिर जीना किस लिए ये भी कहते हैं लोग। हाँ सर, प्राइस कितना, प्राइस की बात करते हैं? ये जो हमारी जो ऑर्डिनरी कैंसर जो हम अभी तक कर रहे हैं उससे ये करीब करीब डबल होगा। तो यही अभी आपके ही किसी फ्रेंड ने हमसे पूछा कि भाई किस में ये यूज करेंगे। अगर ये महंगा है तो हम सब में तो यूज नहीं करेंगे, और ये जरूरी भी नहीं है कि सब अपना घर बार बेच के एमआर लिनेक पे इलाज कराएं। वो हम अगर वो पर्टिकुलर ट्यूमर है जो कि एमआर लिनेक से
आपका ज्यादा कंट्रोल रेट दे रहा है, हम उसी के लिए इसको ऑफर करेंगे। पेनक्रियास का कैंसर है, प्रोस्टेट का कैंसर है, कुछ ब्रेन ट्यूमर्स के ऐसे कैंसर है जो कि MR लिनेक में बेटर सर्वाइवल देंगे, उसके लिए हम उनको फिर सजेस्ट करेंगे। अगर वो अब तो इंश्योरेंस कंपनीज भी कवर करने लग गई हैं इसको, तो अगर आपकी हमें सहयोग मिले तो हमें प्रेशर डालना चाहिए इंश्योरेंस कंपनी में कि इसके बारे में अप्रूवल दें। अब तो लोग, बहुत सारे लोग हेल्थ इंश्योरेंस करते हैं, अगर उनके पास हेल्थ इंश्योरेंस है तो उनको अगर रीइंबर्समेंट मिल जाए तो इलाज कराने में क्या मुश्किल है भाई। तो ये भी एक है, इंडिया में भी लोग अब जागरूक हो गए हैं और ज्यादा से ज्यादा लोग हेल्थ इंश्योरेंस ले रहे हैं। और जब वो ले रहे हैं, जब हमारे पास आते हैं तो हमें सबसे संतोष ये मिलता है भाई इनके इंश्योरेंस है तो वो इलाज ले सकते हैं।